السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں عزیزز جاں عزیزی۔ نہیں، عزیزز جاں عزیزی تو ہیں، یہ کون ہے سام پکڑنے والے دونوں؟ ان کا بھی تو کوئی تعارف کراؤ۔ میں تعارف کرواتا ہوں، اور جس مقصد کے لیے میں نے ان کو زحمت دی ہے وہ پھر تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا جب میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ زحمت کیا؟ وہ شکلوں سے تو لگ رہا ہے کوئی اینٹیں اوپر چڑھانی ہیں، اور ساتھ لگ رہا ہے کوئی میرا خیال ہے الیکٹریشن کا کام کریں گے۔ اور جانے دو یار، جانے دو۔ یہ بھائی صاحب دونوں کوئی اسٹیشن ماسٹر ہے؟ او بھائی یہ عزیزی صاحب ہے۔ اچھا بھائی جان، تعارف سن لیں، دونوں سگے بھائی ہیں، اچھا ٹھیک ہے؟ وہ ادھر تشریف رکھتے ہیں چودھری برکت صاحب، چشمہ لگائے ہوئے، واہ جی واہ، جن کے منہ پہ برکت نہیں ہے وہ ہے چوری برکت۔ یار تعارف تو سن لو، پھر مسئلہ بھی سن لو۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ چودھری برکت صاحب آج سے 14-15 سال پہلے ناروے تشریف لے گئے تھے۔ تو پھر ناروے والے کدھر گئے تھے؟ یار پہلے تعارف سن لو، خدا کا نام۔ میں تو ایسے بیچ میں کوئی سوال جین میں نہیں تم سوال اپنے ذرا کنٹرول رکھو، ٹھیک ہے؟ اور وہ برکت صاحب ہے، یہ چودھری رحمت صاحب ہے، ان کے سگے چھوٹے بھائی، یہ گاؤں میں کاشتکاری کرتے ہیں۔ یہ دونوں کچھ عرصہ پہلے تک ایک دوسرے کی جند جان تھے جی، ایک دوسرے کے بغیر سانس نہیں لیتے تھے، اور آج عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، دشمنی تک بڑھ گئی ہے بات۔ اور وجہ تنازع پتہ کیا ہے؟ کیا جی؟ چودھری برکت صاحب جو ناروے رہتے ہیں، ان کی بیٹی ہے، ان کا بیٹا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دو، وہ کہتے ہیں جی میں تو تیار ہوں، میری بیٹی نہیں مانتی، میں کیا کروں؟ اچھا یہ مسئلہ تو پاکستان میں بڑا عام ہے، بلکہ جتنے بھی لوگ جو ہیں اوورسیز پاکستانی ہمارے بہن بھائی، ان بیچاروں کے بچوں کے ساتھ اکثر یہ جھگڑا چل پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ یہ جھگڑے کی بنیادی وجہ بنتی جا رہی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جی صرف جو وراثتی جائیداد ہے اس کی تقسیم پر جھگڑا ہوتا ہے، لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ وراثتی جائیداد کی تقسیم دوسرے نمبر پر چلی گئی ہے، پہلے نمبر پر رشتوں کا ہونا یا نہ ہونا، وہ وجہ تنازع ہے جو خاندانی جھگڑے بن گئے۔ ہاں جی، حالانکہ اب میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپس میں جو کلوز رشتہ دار ہیں، رشتہ داری ہے جو، وہ نہ شادی کریں تو اچھا ہے، چونکہ اس سے بیماریاں بہت پھیلتی ہیں۔ اب ان کا مسئلہ خود ہی سمجھ لو ان سے یار۔ اور سر ہم دونوں بھائیوں نے اپنی سکی پھپھی کے گھر میں شادی کری ہے، ہمارے بچوں کو تو کوئی بیماری نہیں لگی۔ نہیں، آپ تو دونوں خود ایک بیماری لگ گئے نا ان کو۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ میڈیکل سائنس بتاتی ہے، ہم نہیں بتاتے۔ بہرحال یہ ٹاپک تو علیحدہ ہے۔ یہ جو ٹاپک اس وقت پاک جنید نے چھیڑا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ بچوں کی شادیاں آپس میں نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے، جی سگے بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائیاں۔ تو اس میں میرا خیال ہے آپ لوگوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی اگر بچی نہیں مانتی کہ میں نے شادی اس دمبے کے بیٹے کے ساتھ کرنی ہے، میں مانتا ہوں جی میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، خون ہے میرا، میرے سے ٹریکٹر مانگ لے، کوئی مکان مانگ لے، کوئی پیسے مانگ لے، بچی کا رشتہ مانگ رہا ہے۔ اور میں فقیر ہوں، تجھ سے پیسے مانگ لوں، ٹریکٹر مانگ رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اور جناب چوری صاحب، وہ بھائی آپ کا پیار سے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات، آپ فقیر نہیں ہیں، مگر منہ سے آپ کوئی میٹرو کے مالک بھی نہیں لگ رہے، اوپر سے محبت سے کہہ رہے ہیں بیچارہ۔ اوپر سے میری بٹیا رانی ادھر ماڈرن ماحول میں پلی بڑی ہے جی، گو میں نے اس کو بڑی کھینچ کے تربیت کی ہے، لیکن اس کا کوئی اپنا مائنڈ ہے، وہ نہیں مانتی تو میں کیا کروں؟ برکت صاحب چلیں، میں مانتا ہوں کہ بہت زیادہ فرق ہے، لیکن آپ ان کے بیٹے سے ملے تو صحیح، غور تو کریں۔ میں کہتا ہوں جی کبھی آپ ملے نا ان کے بچے سے تو آپ کو پتا چلے۔ یہ کہتا نا کہ پھپھو کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے تو بچوں میں کوئی بیماری نہیں ہے، اتنا ہے اس کا بیٹا، یہ بیماری نہیں ہے۔ یہ ویسے کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کا بیٹا تو اتنا ہی ہوگا، اب اس کے گھر نوری ناتھ تو نہیں نا پیدا۔ بھائی ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ہم باپ بیٹا ابھی قد نکال رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، تو اتنا تمہارے گھر میں پانی کھڑا وہ نکال نہیں سکے تم، ہے کد نکالو گے؟ قد اب آپ نے کون سا نکالنا، اب تو فرشتے نے جان نکال لی ہے۔ سر میں صرف یہ شادی اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ بھائیوں کے رشتے مضبوط ہو جائیں۔ یہ بھی ایک عام طور پہ بات سمجھی جاتی ہے کہ بہن بھائیوں کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بچوں کی رشتہ داری قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ یعنی بچوں کو ان کی مرضی کے خلاف بیاہ کے ان کی زندگی اپسیٹ کر کے تو اپنی رشتہ داری پکی کرنا چاہتے ہیں، تو اگر کل کلاں کو اللہ نہ کرے بچیوں کی آپس میں علیحدگی ہو گئی تو پھر کیا رشتہ داری قائم رہے؟ ایگزیکٹلی، اس پہ ہم بہت کم غور کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی رشتہ داری، اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے
बच्चों के रिश्तों का सहारा लेते हैं, कल कल अगर बच्चों के दरमियान कुछ हो जाए तो फिर बड़ों के दरमियान भी फूट पड़ जाएगी। ये बहुत गलत हो रहा है जी पाकिस्तान में। एक देग पकाकर छोटे छोटे बच्चों की मंगनी कर देते हैं। नहीं, सही बात है। अब बड़े हो गए, दोनों में पता नहीं क्या ऊंच नीच आ जाए। अब हमारी तरफ देख लें, मेरी बेटी माशाल्लाह 5.5 फुट ऊंची और इसका बेटा 3.5 फुट नीचा। अरे वाकई जिस तरह ये जिद्दी हुआ ये तो कहेगा कि मैं 2.5 फुट का बेटे को नेफा पुड़वा देता। देखिए सर, बात वाकई ये ठीक है कि तकेनल जो होता है ना रिश्ता योर यमाई के साथ, जबरदस्ती जिसे कहते हैं किया हुआ, वो नहीं पनपता। तुम यारा हौसले में रहो, इतना उस पर रोब ना डालो। अगर वो बेचारा आता है मोहब्बतें लेने के लिए यहाँ पे वो साल बाद, तो हमें गल नहीं पड़ना चाहिए बाहर से आए हुए लोगों को। तो मैं एक इसकी बुनियादी वजह बताऊं। आमतौर पे यह समझा जाता है कि जिस तरह माशरे में कम से कम तालीम फैल रही है, तो ये जो अफसोसनाक रुझान है कि जनाब बच्चों के रिश्तों की वजह से आपस में फूट पड़ जाती है, ये कम होगा, ये ज्यादा होता जा रहा है। अचंभे की बात है कि तालीम फैलने के बावजूद ये रुझान, मनफी रुझान फरोग पा रहा है। इसकी एक बुनियादी वजह है, थोड़ा सा गौर किया तो पता चला कि पहले वक्तों में बुजुर्गों की बहुत मानी जाती थी। घर का जो बुजुर्ग होता था वो जो कहता था वही हो जाता था, बेशक गलत होता था। बचपन में मंगनी करके एक तय कर दी जाती थी, लड़ाइयां नहीं पड़ती थी। अच्छा, अब वो जॉइंट फैमिली सिस्टम कम से कम कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह से ख्वाहिश तो मौजूद होती है किसी न किसी एक तरफ से कि जनाब मैंने अपनी बेटी की या बेटे की शादी भाई या बहन की बेटी के बेटे से करनी है। जब नहीं होती तो लड़ाइयां पड़ जाती हैं, बुजुर्ग सर पे होता कोई नहीं है जो सुलह करवाए उस पहले की तरह। दूसरी एक बुनियादी वजह यह है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कमजोर पड़ने से जो उम्रों का जो फर्क है ना वो बढ़ता जा रहा है। पहले कमोबेश जॉइंट फैमिली सिस्टम में इकट्ठी शादी होती थी, बच्चों की उम्रें भी 19-20 के फर्क के साथ बराबर होती थी। तो कितने सारे इकट्ठे बड़े हो जाते थे। अच्छा, एग्जैक्टली। और दूसरा फर्क जो पड़ा है उसकी एक वजह यह है कि तालीम में भी फर्क पड़ गया। पहले वक्तों में तालीम में फर्क कम होता था बच्चों के दरमियान। सारे ही तकरीबन पढ़ रहे होते। हाँ, सारे ही नहीं पढ़ रहे एक ही कॉलेजेस में एक ही स्कूलों में पढ़ते थे। जो तालीम का फर्क है वो कम होता था। अब तालीम का फर्क बहुत ज्यादा पैदा हो गया है। कोई अंग्रेजी मीडियम, कोई उर्दू मीडियम, कोई सरकारी स्कूल, कोई अच्छे स्कूल, कोई नीचे स्कूल। अपने तनख्वाह के मुताबिक वालिदैन बेचारे तालीम देते। सबसे बड़ी जो बात है ना पाजनैद, इखलाकियात का भी बड़ा फर्क पड़ गया। इखलाकियात में एक चीज आती है एहसास, वो भी खत्म हो गया। एहसास किस बात का? दूसरे की दिलाजारी ना होने का एहसास, दूसरे की बेइज्जती ना करने का एहसास, दूसरे का दिल टूट जाएगा इसका एहसास, ये सारा भी खत्म हो गया। पर भाई मेरे साथ तो जाती है ना, मेरे बच्चे ने तो बचपन से ही नॉर्वे में शादी का जेन बनाया हुआ है। उसने सिर्फ जेन ही बनाया है, उसको जाके समझाओ को मकान बनाए, को जायदाद बनाए, वो ऐसी शक्ल सूरत बनाए तो उसको कहीं रिश्ता अच्छा मिल जाए। उसने सिर्फ जेन ही बनाया हुआ है। हद हो गई है। वैसे ये एक और बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना पिछले रिश्ते जो होते हैं उनको बचाते हैं, अगले रिश्तों की वजह से पिछले रिश्ते तोड़ नहीं। बहुत खूबसूरत बात। अरे ये बताओ ना, तुम अब बात समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा हुआ है, बताओ। वो सर 3-4 दफा मैट्रिक पास करने की कोशिश कर बैठा है, नहीं पास हुआ। उसके मुकद्दर अपना नाम लिख लेता है, अखबार पढ़ लेता है, और क्या चाहिए इसकी बेटी को? अचार डालना उसकी तालीम का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। रिश्ता पता नहीं तुम्हारे पुत्र का होने के नहीं उधर, मगर ख्यालात तुम्हारे मनूस हैं। अच्छा जी, आपकी बेटी कितना पढ़ी हुई है? वो तो बहुत पढ़ चुकी है। कितना? नहीं, मुझे नहीं पता कितनी पढ़ी है। अगर वालिदैन का ये हाल है तो फिर तुम समझ ही रहे हो कि कितनी को अक्ल होगी दोनों को। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बड़े शहरों में कई घंटों के लिए ट्रैफिक जैम आवाम के लिए एक अजाब की सूरत इख्तियार कर गया। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ट्रैफिक वार्डन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जुनैद साहब, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपका। आप गाया मैं बुलाते रहते हैं और मैं अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका देते हैं। अच्छा, इससे पहले जब भी आप आए आप अपने मसाइल का रोना रोते रहते हैं। आज हमने खास तौर पे आपको बुलाया है कि जो घंटों के लिए सड़कें बंद हो जाती हैं, आप कहीं नजर नहीं आते, और अगर आपके साथी कहीं इक्का दुक्का नजर भी आए तो वो हाथ बांधे किनारे पे खड़े खामोश तमाशाई बने रहते हैं। देखें जुनैद साहब, इट्स ऑल डिपेंड ऑन ऑफिसर्स।
اردو میں بات کرو, اردو کا شو ہے. اردو کا شو ہاں جی. समझ नहीं आई हमें. اوکے. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ آفیسرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آفیسر ڈاڈے آ جائے نا جی ذرا زور ڈال, تو پھر ٹریفک وارڈنز کی دوڑیں لگی ہوتی ہیں. جتنا مرضی سخت سے سخت آفیسر ہو, تم لوگوں کی جو مین پاور کی اکثریت ہے وہ وی وی آئی پی روٹس پہ لگی ہوتی ہے ڈیوٹی دینے, جہاں حکمرانوں کی رہائش گاہیں ہیں, دفاتر ہیں. نہیں تو ڈیوٹی نہ دے پھر کیا وہ کرے؟ کم لوگ اتنے, عوام کیا اسی طرح مرتی رہے بیچاری. نہیں تو عوام کے ساتھ اب ساڑھوں کے ساتھ ایک موٹر سائیکل لگا دے. जिस तरह आपकी آش, وہاں پہ ایک ایک فیملی ممبر کے لیے 10 ٹریفک وارڈن ہے, اور ادھر 10 ہزار کے لیے ایک ٹریفک وارڈن نہیں نہیں ہے. تو 10 ٹریفک وارڈن ہوں گے تو راستہ ملے گا نا. اگر ان کو راستہ نہ ملا تو پھر دوسرے دن سیاپا پڑ جاتا ہے. کیا تو ڈال لیتے ہیں, آفیسرز بلا لیتے ہیں کہ کیوں تنگ کیا. وہ پھر ایک ایک گاڑی کے ساتھ 10 وارڈن لگانے پڑتے ہیں. یہ جس روانی سے آپ بول رہے ہیں نا, اسی روانی سے ٹریفک بھی جاری رکھیں. ٹریفک بھی جاری ہے. آپ کو کیا خیال ہے کہ ٹریفک نہیں چل رہی؟ ٹریفک چل رہی ہے تو آپ گھر سے نکل کے شو پہ آ کے بیٹھے ہو. یہ کیا وارڈن ہے آپ؟ آپ کیا اڑ کے آتی ہیں؟ آپ کبوں کے ساتھ آتی ہیں؟ ادھر ٹریفک کھڑی ہوتی ہے, ادھر 2.5 گھنٹے پھنسے رہے ہیں ٹریفک میں. یہ نہیں تو کب پھنسے رہے ہیں؟ یہ کل یہ مجھے دھوئیں والے ٹرک کے پیچھے تھا میں. آپ جی یہ اب سب کچھ ہم پہ نہ ڈال دو, ٹریفک وارڈن پہ نہ ڈال دو. میں نے تمہیں 2 سال پہلے بھی دیکھا تھا اسی طرح مار منہ تھا آپ کا. آج نہیں ہو گیا. ٹریفک کے چل رہی ہوتی ہے تو لوگ اپنے اپنے کاموں کو پہنچتے ہیں نا. آپ کوئی بلی نہیں ہے کہ دیواروں کے اوپر سے چل چل کے ادھر آ جاتے. ادھر ٹریفک کھڑی, ادھر آپ کھڑے, نہ ٹریفک چل رہی نہ آپ ہی لڑ رہے. یار یہ کیا جواز ہے؟ 15 منٹ کا سفر 2.5 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے. کیا بات ہے ڈسٹ تمہارا؟ الرجی ہوگی ہے, ڈسٹ الرجی. بس ٹھہر جاؤ, ڈسٹ الرجی ہو گئی ہے. پہلے تم بڑا سیٹ مند نظر آتے تھے. بات کرنے دو. ہی از سینئر جرنلسٹ اور یو نو آئی ایم آفیسر. بات کر رہا ہوں میں ساری کلیئر کروں گا. جنید صاحب اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ٹریفک کی روانگی ہوتی ہے نا, اور روانگی نہیں روانی, ٹریفک کی جو روانگی ہوتی روانگی برات ہوتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں جو صحیح بات ہے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریفک کی روانی ہے وہ صرف ہم پہ ہی ڈیپینڈ نہیں کرتی, وہ لوگوں کے ایٹیچیوڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. لوگ جو ہے نا جی, وہ گاڑی خراب ہو جائے کسی کو کہیں سائڈ پہ کر لے, لڑنا شروع کر دیتا ہے. یار تمہاری گاڑی خراب ہو گئی ہے تو تم نے سڑک کے اوپر تو نہیں نا اس کو ٹھیک کر کے تو پھر ادھر کرنا. ہم تو ڈھکا لگانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اگر کوئی آپس میں لگ جائے گاڑیاں تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بھائی جی سائڈ پہ ہو کے لگو. کہتے ہیں سائڈ پہ کیا موقع زور سے لگتا ہے؟ ادھر لڑنے کو تکلیف ہے تم کو؟ تو ہمارے پاس تو نہ ویپن ہوتا ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈا سوٹا ہوتا ہے. ویپن کے بغیر کھڑے ہونا سڑک کے اوپر جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے. آپ ہم کو کریڈٹ نہیں دیتے, آپ ہم کو اپریشیٹ نہیں کرتے. آپ میڈیا کے اوپر یہ نہیں کہتے کہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ اپنی جان پہ کھیل کے تو ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. آپ صرف ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے. آپ کو چاہیے کہ جو کام ہم ٹھیک کرتے ہیں, جس طرح کا ہم ڈیوٹی دیتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ ہمیں اپریشیٹ بھی کریں. اب آپ شباز شریف بن کے میری باتیں سنتے جا رہے ہیں, آپ آگے سے جواب نہیں دیتے. آپ صرف اس لیے یہ ایکشن بنا رہے ہیں کہ وارڈن ڈر جائے گا. میں نہیں ڈرتا. میں شباز شریف کے ساتھ ڈیوٹی دیتا ہوں. سی ایم صاحب نے مجھے 2 دفعہ اوارڈ دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں یہ لڑکا سب سے تیز میری گاڑی کے ساتھ بھاگتا ہے. بس تم لوگوں کو سی ایم کی گاڑی کے ساتھ ہی بھاگنا آتا ہے. تو اٹس ناٹ بیڈ, کیونکہ وہ ہمارے چیف ہیں, ان کے پیچھے تو بھاگنا پڑتا ہے نا. اور ہم آپ بھی ہمارے ساڑھ آنکھوں پر ہمارے لیے. سر آنکھوں پہ دیکھیں میری بات سنیں جنید صاحب, ہوتا یہ ہے, اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وارڈن واقعی کم ہے, تعداد کم ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اگر وارڈن آپ سی ایم کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں تو پھر زیادہ اس لیے کم ہو گئے ہیں کہ سی ایم کی فیملی کے ساتھ وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. اگر انہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں تو پھر اور بڑھتی کر لو. یہ کیا کر رہے ہو؟ خوش ہو رہا ہوں اس وقت, سی ایم دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا میری طرف سے, شاید میری پروموشن ہو جائے. اور سر جی یہ پڑھیا لکھا نہیں جی نا, یہ جسا ویک کے نا افسر لایا ہے. جو سر دیکھ کے نہیں افسر لگتا. جب میں بٹی ہوا تھا اس وقت میں بالکل چیٹ کا سا پتلا سا تھا. یہ تو اب ڈیوٹی دینے کے ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں نا, بس ایکسرسائز اتنی ہوتی ہے جتنی سی ایم کے ساتھ ڈیوٹی ہوتی ہے. یار سی ایم کو چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ جب کئی گھنٹے کے لیے ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے تو تم لوگ تو اس پوائنٹ تک پہنچ ہی نہیں پاتے.
तुम लोग हिम्मत ही हार जाते हो कि ये हजारों गाड़ियों की लाइनें, हम क्या कर सकते हैं, आप गायब हो जाते हो मौके से। ड्यूटी देते हैं आपको बता रहे हैं ना, क्योंकि हम ना हम वेपन से लेस है, ना हमारे पास कोई ऐसी ताकत है, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, आगे से स्पॉट पे गालियां तो देते पहुंच सकते हो ना, जहां पे ट्रैफिक ब्लॉक है उस जगह पे पहुंचो और जिस वजह से ब्लॉक है उसको खत्म करो। आप यकीन माने मैं तो इतना सख्त अफसर हूं, मैंने एक दफा हम शहबाज का चालान काट लिया था। फिर उसने तुम्हें मुअत्तल नहीं करवाया? नहीं, उसको तो पता ही नहीं, मैंने चालान काट के खुद ही बांट दिया था। मैंने कहा मैं कहीं बता तो सकूं कि मैंने हम शहबाज का चालान किया था। उसको पता भी नहीं कि चालान हुआ है। ना पता हो चालान तो उसी का कटा है। वो क्या कहते हैं कि मालिदा कंपनी लाना डिपार्टमेंट लावे, मालिदा कंपनी लाना लावे या ना लावे। हम तो जब बच्चे हुए थे हमें 2 ही फूल लगे हुए थे, अब भी 2 ही लगे हुए हैं हमारे, तो अब बच्चे में छेड़ना शुरू हो गए। अब्बू आपका कंडा जो है ये बंजर है, इस पे मजीद फूल नहीं लग रहे। और ये तुम क्या कर रहे हो आंख से? मैंने बातों में अब मीडिया के ऊपर अपना केस पेश कर दिया है। तनख्वाहों वाली बात तो आपकी जायज है, तनख्वाह वाली भी और फूल वाली भी। और जितनी तनख्वाह मिल रही है जो ग्रेड है उसमें काम तो करो। काम तो करते हैं, काम करते हैं। देखिए हौसला अफजाई अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी होना तो फिर मजीद बड़ा काम करता है। जब पता है कि जितना मर्जी काम कर ले फूल दो ही रहने और तनख्वाह भी उतनी रहनी है तो फिर बंडल लो जाते हैं। बट इंसान है, हम भी कोई रोबोट तो नहीं है। आप तो रोबोट को जानते होंगे क्योंकि आप खुद लोहे के इंसान हैं। पुलिस से बात करो मेरे साथ। ये बेचारे को मुझ पे बड़ा गुस्सा है। क्यों? एक दफा अपनी गाड़ी पे जा रहा था, इसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, साथ बैठा हुआ था, मैंने ड्राइवर का चालान काट लिया। मैंने कहा तुम गाड़ी का सिलेंसर उतार के सीट पे रख के जा रहे हो। जिस महकमे से भी बात करके देख लो सारा मलबा आवाम पे डाल देंगे, अपनी गलती तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। जुनैद साहब आवाम को भी एजुकेट हो जाना चाहिए, बस कर दे आवाम भी। पिछले दिनों हमने सख्ती की थी कि बेल्ट बांधा करे। एक बंदा जा रहा है गाड़ी के ऊपर, सलवार कमीज उसने पहनी हुई थी, मैंने कहा बेल्ट बांधो, तो आगे से कहता पागल हो गया, सलवार च नाला पहनता बेल्ट नहीं होती। और मैं कहा सलवार च नाला ही होता है, गड्डी भी किन्ने तू नाले वाली ते नहीं ले ली हुई। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आइए आपको सीधा लिए चलते हैं मोहतरम जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चश्मे फलक देख रही है, मौजे सभा देख रही है, तारीख देख रही है, सियासी जमातों से हमारा रास्ता जुदा देख रही है, बाखुदा देख रही है, बाखुदा देख रही है। और पीपल्स पार्टी तो दूर खड़ी महज तमाशा देख रही है, लेकिन शाह महमूद की जमाना शनास नजर मालूम है क्या देख रही है। ये पुरबसीरत आंख सारी बसात को उलटता देख रही है। ओ क्या मतलब, मैं तकरीर कर रहा हूं तो ये थे नहरी च रक्षा नहीं उलट गया। शाह जी तकरीर नहीं कर रहे खुदा के लिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। भाई हम ये नहीं जानते कि जलसा हो रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। शाह महमूद के सामने जब इसकी आवाम आती है, चंद लोग आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, तो शाह महमूद का जज्बा, पाकिस्तान को बदल देने का जज्बा उभर आता है। आप यकीन मानिए हमारे तो गली में अगर कहीं बालो कुड़ियो चीज बनी दी लई जाओ हो रहा होता है तो हम उस पे भी तकरीर शुरू कर देते हैं, लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। तो हम कह रहे थे कि हमारी आंख हुक्मरानों को पनामा की दलदल में धंसता देख रही है, अगले इलेक्शन में पीटीआई का गलबा देख रही है। बहुत अच्छे। हमारे बिछाए हुए इस जाल में पंछी को फंसता देख रही है। शाह जी सारी बातें छोड़ें, ये बताएं कि बरतानवी वजीर खारजा के इशाइये में बिलावल और आपके दरमियान अलहदगी में क्या गुफ्तगू हुई है? आपका हाथ पकड़ के ले गए कोने में ले जाके काफी देर खुसर पुसर करते रहे आप दोनों। क्या कह रहे थे बिलावल? सीनियर और काफी अक्लमंद सहाफी हैं आप। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का फायदा उठाते हुए क्या शाह महमूद के मुंह से सब कुछ उगलवाना चाहते हैं? बताए ना क्या कहा बिलावल ने। पुछ रहा सी 2 50 50 दे है नहीं।
भाई एक मजे हुए सहाफी हैं आप भी जानते हैं कि शाह महमूद को बिलावल का अलहदगी में ले जाना किस बात की तरफ इशारा करता है भाई। अपनी इंग्लिश एक्सेंट वाली टूटी फूटी पंजाबी में बिलावल हमसे यही कह रहे थे, आजा तेनू अखियां उड़ीदियां। अरे आजा तेनू अखियां उड़ीदियां। मिन्नतें करता रहा बिलावल, समाजते करता रहा, मगर शाह महमूद चट्टान की तरह खड़ा रहा, मस से टस नहीं हुआ। टस से मस, चले आप टस से मस कर ले, हमने तो उधर मस से टस ही देखा है। वाह वाह वाह। अरे वहां जो खाना बरता रहे थे वह, उसने हमें कहा शाह जी थोड़ा साइड पे हो जाओ, मगर हम बाखुदा टस से मस और मस से टस नहीं हुआ। शाह जी चट्टान पहाड़ नू कहंदे ना, नहीं तेरे फुफ्फड़ नू कहते। शाह जी क्या हो गया आपको? हमने बिलावल को भी साफ लफ्जों में कह दिया, देर हो गई, देर हो चुकी, देर कर बैठे, बहुत देर हो गई। बिलावल ने क्या, नहीं शाह जी ले 7:45 हुए हैं। हमने कहा बिलावल जुगतों का नहीं, इस वक्त फिक्र का टाइम है। शाह महमूद आपके हाथ नहीं आने वाला। शाह जी जी आपको खाने में क्या पसंद है? जो तेरे को लो बच जावे, मगर तेरे जुस्से तो लग जाए तो कुछ नहीं छटदा होना। जुनैद भाई इधर कोई वजनी चीज नहीं पड़ी, वजनी चीज तो वो खुद ही है ना। नहीं कोई ये दिन लो वजनी है, हद हो गई है भाई। सवाल गंदुम जवाब चना, क्या कर रहे हैं आप इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, अमीर मुकाम का इंटरव्यू नहीं ले रहे। अच्छा शाह जी छोड़े सारी बातें, ये बताएं कि दौरे इंग्लैंड में खान साहब के साथ थे आप, वहां पे किन किन से मुलाकातें हुई? किसी से भी नहीं, सिर्फ अनिल कपूर से मुलाकात हुई। हाँ क्या बात हुई? इंडियन अदाकार अनिल कपूर जी, जी। हमें कहने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि शाह जी आप इमरान खान के साथ मिले, पीटीआई के हीरो बने, तो पीटीआई हिट हो गई। सोनम कपूर के साथ भी हीरो आ जाइए। अच्छा हीरो की ऑफर हुई आपको? अनिल कपूर इंडियन अदाकार। शाह जी अनिल कपूर हमें पता है इंडियन अदाकार है, हमने कब कहा कि डीसीओ सक्कर है अनिल कपूर? जे तुसी अगो जुगत पानी ही करना है तो फिर शाह महमूद को इजाजत दे दीजिए। शाह जी आप भी तो जुगत पानी कर रहे हैं उस वक्त से। मगर शाह महमूद की जुगत में मानवीयत और दूर अंदेशी का समंदर पिन्हा होता है। पिन्हा दे लिख लेंदी हो कि नहीं? पिन्ना लिख लेंदी हो? पिन्ना नहीं पिन्ना फड़ लेने हैं। तुसी पिन्ना फड़ लवो, तू उठ के ओदे च हे फसा दे ताकि एदा पिन्ना पिन्हा बन जावे। शाह जी हे पसारना पिन्ना खराब तो नहीं हो जाएगा? या फिर तुसी अपनी बसंत मुना लो या फिर अखबार छाप लो। शाह जी ये पिन्हा वाल तो तुसी खुद ध्यान पाया, मैं तो मानवीयता पूछना सी। की करना ही फिर अपने सीनियर तरीन सहाफी दा, कुछ खुद करेगा या मैं टकरो टकरी? शाह जी उनको नहीं कुछ लिखना आ रहा तो बता दें आप। हमें नहीं लिखना आता तो यहाँ क्यों बैठ जाते हैं, जाके किसी मशीन के आगे बैठे। आप भी तो आसान उर्दू में बात करें ना, आप भी तो कह रहे हैं कि शाह महमूद की जुगत में दूर अंदेशी और मानवीयत का समंदर पिन्हा है। अच्छा जी आसान जुबान इच दस देनी है। जी शाह महमूद दी जुगत विच हाय मरवी हुंडाई वाह वाह। और भी हुंडाई हुन आ गई ये समझ। आगे जी समझ, क्या अच्छी तरह समझाया जी। अच्छा जी जिउंदे रहो जिउंदे। और प्या हो यही तेरा सीनियर तरीन साहब।
दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। लो जी, इंतहाई अहम मौजूद जिस पे एक दो दफा मैं बात पहले भी कर चुका हूं, दोबारा करना चाह रहा हूं कि ये बच्चों ने जो दूध पीना छोड़ दिया हुआ है ना, और वालदैन ने भी, माओ ने भी इजी ले लिया हुआ कि खैर है जी नहीं पी रहा तो अब मैं क्या करूं, ये बहुत गलत बात है। हाँ जी। अभी मुझे एक डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये हड्डियां मजबूत करने के लिए, जिस्म को मजबूत करने के लिए दूध इंतहाई अच्छी गजा है। जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि दूध अगर कोई तुम्हें पेश करे तो उससे इनकार न करो, पी लो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दूध बड़े शौक से पीते थे। इसका मतलब यह है कि ये बड़ी ही अहम गया है जो हम हौली हौली ईजी लेना शुरू हो गए हुए हैं, जिससे सेहतें खराब हो गई हैं। अब बच्चों को आप कहें ना छोटी सी मेज का कि पुत्र ये उठा के इधर ले आओ, तो वो दूसरे भाई को आवाज मारता है, जी हाथ पोआओ। इतनी छोटी टेबल भी हाथ पाओ से इधर आएगी। बच्चों में जान ही नहीं रही। मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि तवज्जो से बच्चों को दूध पिलाएं, सारे खानदानों को, फैमिलियों को। सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों के लिए भी दूध जरूरी है। बेशक आप एक कप पिए लेकिन दूध पीने की आदत तर्क ना करें यार। बड़े जो है ना पुरस्कून नींद के लिए, हाँ जी, रात को सोने से पहले आप नीम गर्म या गर्म दूध का एक कप पी ले, फिर फर्क देखें। हाय 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 हाय, अल्लाह ताला जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। हमारे को दोस्त हैं डॉक्टर हाफिज कयूम साहब, वो दूध खालस पिलाते हैं। मैं तो अमान से यकीन करो रोने लग जाता। हाय हाय। मैं कहता हूँ कि यार खालस दूध अब बाजार से तो मिलता ही नहीं। हाँ। और मैं ये सुन के बड़ा हैरान हुआ हूँ कि ऊंटनी के दूध में बहुत ज्यादा सेहत है, वो भी इधर नहीं मिलता। यार जब ऊँटनी नहीं मिलेगी तो ऊँटनी का दूध तो मैं कहां से ला दें, लूमों से निकाल दें। इंतहाई सख्त जुगतिया हो गया हुआ है। लूमों में कपड़ा बनता है या दूध निकलेगा उधर से? तो ऊँटनी का दूध तभी होगा जब ऊँटनी होगी। ऊँटनी नहीं है शहरों में, कहां से जो तुम्हें- मैं बोरोकेट का दूध लेने जाऊं जी लूमों से। उधर जाके कह रहा हूँ भाई जी 2 थान पापलीन का दूध देना ऐ ते जाके कहेगा जी 1 किलो मलेशिया का दूध। असल में ये करना चाह रहा हूँ कि आदत डालनी चाहिए हर चीज के खाने पीने की। जो अल्लाह पाक ने हलाल चीज आपको दी है उसकी आदत डाले। सही। अब बकरी का दूध में बड़ी शफा है मगर हमें आदत ही नहीं, हमें उसमें से स्मेल आती है और तरह की। हाँ जी। ये हमारे बड़े प्यारे बहुत अच्छे म्यूजिशियन, बड़े बड़े फनकार हुए हैं, पाक साहब बहुत हो गए हुए हैं। कहीं फंक्शन पे चले गए ना तो उन्होंने बकरी के दूध की चाय पिला दी, खाना शाना खुआ के चौधरीयों ने। तो चौधरी साहब खुद अंदर आए, आके कहते हैं खान साहब रोटी शटी खाती है जनाब, राज के मजा आया? कहते हैं कमाल मजा आया जनाब, आपके कामियों ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने पहले छोटा गोश्त खुआया है जी, फिर छोटे दूध की चाय पिला दी है। बकरी के दूध को कह रहे छोटे दूध की चाय पिला। तो वो हमें अब आदत नहीं है ना। पाक साहब कहते हैं कि मुझसे पी नहीं जा रही थी, मेरे दिल से ये बात निकल गई। जी क्या खबर है आज पहले? जी सुने, अमेरिकी सदारती इलेक्शन पर भी सवालिया निशान लग गया। नताइज हैक होने का इंकशाफ, वोटिंग मशीनों को हैक करके हिलरी के वोट कम किए गए। लो जी, कंटेनर तैयार होने शुरू हो गए। अमेरिका में भी अब देखना कंटेनर निकले ही निकले। ये काम बिगड़ गया हुआ है, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ। और शेख रशीद साहब को फोन करो कि आपको अमेरिका में जॉब मिल सकती है। बड़ा पता चले न्यूयॉर्क जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए, कंटेनर्स लगा के, कितना मजा आए। हाँ जी, होना चाहिए यार, उधर भी रौला गोला पड़ना चाहिए यार, रौनक मेला होना चाहिए। जे सानू नींद नहीं आती तो तुसी क्यों सोओ? बल्कि हिलरी को फोन करके कहो कि साथ ही कनाडा है, उधर से तारुल कादरी साहब को फोन करके तो तरने के बंदे मंगाए जा सकते हैं। पैदल ही आ जाएंगे हाँ कादरी जी, साहब। तारुल कादरी साहब ने तो तकरीर ही ऐसी करनी है कि सारे अंग्रेजों ने सर पे कफन बांध के देखो ना जरा क्या याती की है हिलरी के साथ। ये हैकिंग सिस्टम भी बड़ा खतरनाक है। उस बेचारी के वोट ही हैक हो गए, किसी दिन उसका बंदा हैक हो गया तो फिर पहले वो एक बार हैक हो चुका है। हाँ जी, वो तो बड़ी मुश्किल से वर्मोनिका केस से बेचारा क्लियर हुआ था। और मैं समझता हूँ कि ये जो अमेरिका के अंदर हवा चल पड़ी है ना, हाँ जी। ये अब रुकनी नहीं है। मेरी बात याद रखो। याद रखूं या लिख लूं? लिख लो है कागज पर। इस पे तो तुमने पहले कुछ लिखा हुआ।
भाई पेंसिल रखा करो, मैं जो बात मुंह से निकालूं ये फूल दोबारा नहीं जलने मुंह से, फौरन तहरीर कर लिया करो। अजीजी, अमेरिका में टायर मिलेंगे चलाने के लिए, सड़कें बंद करने के लिए? क्यों नहीं मिलेंगे जनाब, उन्होंने कोई लत्तां वालियां गड्डियां ते नहीं, बल्कि उनको तो नवे टायर मिलेंगे और आग उनकी ज्यादा पकती है। अच्छा जी, आर्मी चीफ के अलविदाइया में आज जाने की जिद ना करो, मेरे ढोल सिपाहिया और चांदनी रातें की धुनें पेश की गईं। दोनों सरबराहों ने धुनें बजाने वालों के पास जाकर उनकी तारीफ की। क्या कहने जी, क्या कॉल आए ने जी दाद देने वास्ते, आर्मी चीफ साहब भी थे, वज़ीर आज़म साहब भी। आए मेरा तो मुंडा घबरा के मैनू कहन लगा, अब्बा जी बंद कर दियो गाना बजाना, दोवें इधर ही आउण डे। उत्तों सी गा बैठे, आज जाने की जिद ना करो, ना वे मियां साहब भावरां दे जान तो बाद सानू फड़वा देना, तुहानू लवे मौला वो की दुआवां मंगण डे साहब। असा भी कह देने सरकार गाने तुसीं लिख के दिते हैं, किहड़े किहड़े गाने ने, अगों मियां साहब एड़ा ना कह देने ते मेरे अल वेख के गाना साजे, आज जाने की जिद ना करो। उत्तर रहील शरीफ साहब माशाअल्लाह आवाज ही एडी भारी है, दाद दिती ने ते इंज लगा दबका मारन डे। उत्तो जवान एडे, उतली जेब चो पैसे कट के दिते ने ते इंज लगा दरख्त तो तोड़ के दिते ने। उत्तो मियां नवाज शरीफ साहब ने भी 5000 दिता है, वेल भी 5000 और टैक्स भी 5000। आई डोंट लाइक दिस टॉक। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। 5000 ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਜਾ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਉੱਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਾਇਆ ਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਾੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ एंटर हुई है। अच्छा जी, फैसलाबाद से खबर है जहां डकैती के मुलजिम पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गए। पीछा करने की बजाय पुलिस थाने वापस आ गई। वैसे माफी चाहते हैं, हमें फजूल तुसी खबर पड़ी है, वापस ही आना सी थाने। वो डाकू ने सानू क्या ही नहीं, आओ जी मेरे नाल चलो, ते एवें ओदे नाल टुर पैंदे। जाहिर वापस घर अपने थाने ही आना सी ना, थाना साडा घर है जी। वो तो नाम रो बगैर दस्यो निकल गया, पता ही लगा था कदों निकल गया। ऐसे ही नहीं गया होगा, तुम्हें कुछ दे दिला के गया होगा। वो स्वाद कटा सिर्फ चकमा दे के गया जी। ऐडा कोई चकमा थोड़ा जिहा मैं चके है, थोड़ा जिहा मैं अपनी ऐसे नहीं चखाया। मैं तू भी चकमा चख लिया, कहते जी कौड़ा चकमा मारो ते चकमे ते नाम मुरा। चला गया बगैर दस्यो चला गया। ओनू हुण तुसीं भावें मफरूर कह लवो, फरार कह लवो, जो मर्जी कह लवो, वो सानू ते चकमा दे के चला गया ने। की करिए? थाने वापस जाके मैं सारे सिपाहियों ने जगाया, मैं कहा उठो नाम मुरादो, तुसीं सुते हो। वो डाकू नस गया ने डाकू। सारे अफसरदा हो गए, कहते चोर साहब एक कीता जे, एक कोई साडे को डाकू सी, वो भी नस गया। ओदे ते आसां सन सारियां, वो भी निकल गया। देखो किस चीज की आसें थी उसे? होंदियां ने जी, घरां च 100 आसां होंदियां ने जनाब। तुहानू सारी गल खोल के दसीए, सारी गल खोल के दसीए। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं आपकी तरफ से भेजी हुई तस्वीरों और वीडियोस के साथ। हजूर, एक तस्वीर बड़ी दिलचस्प है, जरा गौर से देखनी है। वाह जी वाह, पाँव के साथ धक्का लगा रहा है। और इसमें जो अपना हंसी वाली बात है वो ये है कि जो हैवी बाइक है उसको बेचारा 70 वाला तरूं के ले जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे शेख रशीद पीटीआई को तरूं के ले जा रहा है। वो जैसे पहेली डालते थे ना, निकी जेही कुड़ी ते लै परांदा टुरी। इस पे आप कह सकते हैं कि निकी जेही 70 ते लै परांदा टुरी। जिन्हें लत लाई है ना हैवी बैग वाला, कल इसे सड़क ते इसे जगह तेन लभदा रहेगा और नाल गांदा रहेगा, मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ही गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई। कोई से पूछेगा सर आपकी बाइक पेट्रोल पे या डीजल पे, कहता नहीं जी टांग पे है। ठोकर पे है, ठोकर पे। ठोकर पे होता नहीं कि मैं तो इसे ठोकर पे रखता। अच्छा यार, आजकल पुशअप्स का बड़ा चर्चा है। जी जी, ये देखो जरा, ये भी एक पुशअप की किस्म।
ये देखो एक एक बाजू हाथ। पे पुशअप लगाना बड़ी हिम्मत वाली बात। हाँ, ये 200 की है मेरे ख्याल। गौर से देखो ना, हाँ हाँ एक हाथ तो से काफी बहादुर आदमी है। वो भी उठा लिया उसने। कैसा है? जबरदस्त। ए, हेलो। वाह जी वाह। इस पुशअप से मेरा ख्याल है वो जो पीछे खड़ा है ना लड़का, उसके डंड बनेंगे, अगले का तो पेट बढ़ जाना है। पाकिस्तान चीन की मदद से इस तरह तरक्की करेगा। हाय हाय हाय। यानी सारा कुछ चीन ही करेगा। ये दोनों भाई हैं। अच्छा, एक दफा ना इनकी अम्मी ने पिछले को आवाज दी, उसने कहा मैं अम्मी आया, बस रे डिग्गा, इन्हें क्या अम्मी मैं गया। ये तस्वीर देखो यार, ये देखो, ये क्या है जी? भाईजान दुल्हा दुल्हन है और सलामियां देने वालों की आसानी के लिए उन्होंने हाथ में वो जो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन है वो पकड़ी हुई है। यानी उन्होंने कहा कि कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे पास कैश नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, वो सहूलत भी साथ ही है। हाय हाय हाय। नहीं वाकई ये आहिस्ता आहिस्ता दौर आ जाना है। ये बेशक किसी ने मजा या फोटो खिंचवाई हुई है, मगर ये यकीन रख लो कि ऐसा दौर भी आ ही जाएगा कि मशीनें पकड़ के ही बैठ जाएंगे कि भाई जी नहीं नोट ते जाना ना प्लीज, कार्ड अपना स्वाइप करो और सलामी दे के जाओ। समझदार के लिए इशारा काफी, आएंगी ऐसी चीजें। हाँ जी। जिस तरह वारदातें हो रही तो इसी तरह काम चलेगा। सिर्फ कार्ड ही जेब में रखो। जब मुंह दिखाई देने की बारी आएगी तो दुल्हा ने दुल्हन की मशीन छुपा देनी है। चल, अब कुछ ज़रात के रंग भी हो जाए। दिखाएं जी रात क्या कहती है। वाह वाह। बहुत अच्छे। जबरदस्त। यानी कुत्ता ट्रैक्टर चला रहा है, इसका मतलब है कि इसका मालिक किसी नु वड्डण गए। होता है ना कि तुम मेरा काम कर रहा हो, मैं तुम्हारा काम कर देता। हद हो गई है वैसे यार, अजीब अजीब वीडियो तो बना बना के लोड छोड़ रहे हैं। है को बात करने वाली कुत्ता ट्रैक्टर चला रहा है। ते डर के फसले ना कोई कुत्ती जी हो जाए। हाँ जी भौंकण वाली छलियां उग पैण या बड्डण वाले दुआने उग पैण। यार ऐसे ना कहो, बड़ा मेहनती कुत्ता है जो रात को राखी भी करता है और दिन में बाई बीजी भी करता है। अजीजी साबित हुआ कि कुत्ता वफादार होता है, वरना उसने मालिक का ट्रैक्टर लेके भाग जाना था। और ट्रैक्टर है, भागकर कहाँ ले जाता है? मैं मालूम रोड पे ले जाता ट्रैक्टर। पकड़ा जाना था ना, इसलिए नहीं। सियाना होता है ये जानवर, उसको पता है कि यहाँ से बाहर निकला तो पकड़ा जाऊंगा। यार ताकत के मुजाहरे तुमने बड़े बड़े देखे होंगे, आज मैं भी दिखा रहा हूँ तुम्हें। अच्छा जी। ये देखो, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਟਰੈਕਟਰ। ਲਓ ਜੀ ਪਟਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਤਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਟਰੈਕਟਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। लो जी, ऐसे तो मैं 2 खींच सकता हूँ। वैसे इसमें भी रिस्क है, जितनी उसकी सेहत है ना, किसी वक्त भी आवाज आ सकती है। क्लिक। निके भरा ने धौन च छड़नी आ गया, उन्हें कहना मैं मेले तो ले आया, तू करने। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।